Okay. All right. So first of all, I'll create a new file and save as. Let us call it like uh, cool string. Cool string dot Java. Okay. So what we are going to do today is we are going to look into classes again, and at the same time we are going to look into like how the string class, which is working like we normally use to create our strings, how that class has been created. Okay. Uh, as I told you before, the string class is actually a collection of character arrays, and how you manipulate the character arrays, that all of that goes into the string class. Now, suppose somebody says that we do not have a string class and we want to make a string class. How do we make that string class? Okay. And so I'm going to like first of all give you a brief introduction using CoolString, and then we will go towards MyString, which has been created over here. Okay, and that is how we are going to work with this. Okay, um, so first of all, as we know that in Java we have classes. Most of the things are put in classes, and the classes are the things which actually make it object oriented. And when somebody says object oriented, it means that you have a collection of objects, and those objects perform a few different things. Okay. Now, if you still do not understand like what I mean by that, so what you have to do is first of all, I'll make the main function static void main strings string and args. Okay, so as you know, like whenever I start making code, I normally check if everything is working fine, so that I can start working with the code that I have. So I just create this, I run this, and just to check if everything is fine, and it says hi. Okay, so everything is fine right now. Um, so, so what we do is. Um, Now, suppose I was going to work with a student. Okay, so normally what I do is I will write a string name of the student, and then integer age of the student, and then a string or maybe a height of the student, float height. So if the height of the student is suppose 5.8. Um, 5.8 meters, like not meters, 5 feet and 8 meters, 8 inches. So I can write 5.8. Okay, so this is how I'm going to like make the student. Now, in such a scenario, if they are two students, then I will have to make a name one, age one, and height one. And for the second student, I will need to create name two, age two, and height too. And as we move along, so I will have to declare more variables this way in order to define a student. Another way of doing this thing is that since the student like these attributes are common in all the students, what I do is I create a separate class, and that class will contain all of these elements. So what I will do is I will first of all let's cut this out. I cut this out and I create a new file. I call it file save as. Let's call it cool student dot java, and I save this, and so it makes the cool student class, and then in this I put down these attributes. So I do not need these two attributes. So I know that this is name, student has a name, student has an age, student has a height, and
I put them all just to be safe. I put them all to be public. Public name, public age, and public height. So once I create this class, I can go back to my original class and I can write cool student, student, and then I can give him any name like stud, stud, and a cool student stud is equal to a new cool student. And this is how I will declare the students class. Okay. And if I want to create multiple students, I can always make an array, and then I will make it new cool student, and I will give like how big is an array, and once so this will define an array by stud, and then I will have to do for every element in that array for is equal to a new cool student. ठीक है तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा हर 1 2 3 4 5 6 के लिए मुझे सारा बनाना पड़ेगा और उसमें मुझे I will normally do this with a for loop so this 0 will be replaced with I for I is equal to 0 I is less than this and I create इसका फायदा ये होता है कि once you make a student and you know like the student is going to have all these 3 elements you don't have to like define variables for all 3 elements separately. What you can do is you can just create one class which has all the attributes, all the functions, and once all the attributes and the functions are there, you can just declare an array and you can declare all the students that way, or you can declare students separately. What you should keep in mind is that you might get confused, like why I have written it like this, why haven't I written it like this? Okay. तो ये सवाल हो सकता है कि why didn't I do it like this? I cut this out, I put it over here, and I set it like this. Okay, so it's cool student start cool student और यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ ठीक है. So why am I not doing it this way? ठीक है तो इसमें और उसमें फर्क ये है कि over here I am declaring an array. I'm just telling the computer that you have to allocate you have to define an array. But when I write new cool student, so this is where I'm allocating memory. Okay, और यहाँ पे memory allocate करते हुए आपने देखा है कि ये brackets जो है ये function के brackets हैं, so I'm passing 10 over here. So I'm actually passing the value 10 inside a function, inside the constructor. So that is why this will not work. Okay, so because it does not, the computer thinks that okay, I'm declaring an array, and instead of declaring array, I'm calling a constructor over here. So the computer will get confused, like what am I doing over here, and it will not work. So first of all, in terms of classes, what you have to do is you first of all, in case of an array, you first of all create, you tell the computer that I'm going to create a pointer. It is going to point towards 10 memory locations. And now over here, now for the first memory location, I'm allocating the memory. Okay, so this is how it works. Didn't we declare? So when we wrote in line 7, okay, here, didn't we automatically declare all cells of the array with the structure cool student? Then what's the reason for the loop that goes to every cell and marks it cool student? Okay, so what this does is that, so let me go with here. Let's go to paint. So when you write, when you write, okay, so you have this your trusty memory over here. Okay, so as always, my cool drawing. So we declare something like this. This is the memory location, and this is the memory location. And when you write over here, cool students start, and you declare the 10 memory locations. So this only tells us like there is going to be a cool student array, and this will point towards a memory location, and that memory locations and all of these memory locations will have all these memory location will be of type cool student. Okay, so ये करता है, लेकिन ये सिर्फ ना इसकी तरफ point करता है, ये memory allocate नहीं करता.
ठीक है, मेमोरी एलोकेट इसलिए नहीं करता क्योंकि सपोज आप यहाँ पे इन द बिगनिंग आप अपना वेरिएबल आप बता देते हैं कि मैंने एक एरे बनाना है और यहीं पे आप मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, लेकिन आप उस मेमोरी को यूज बहुत देर के बाद करते हैं, यू डोंट यूज इट, you use it for like for a couple of thousand or millions of code of lines. तो अगर आपने पहले से मेमोरी यहाँ पे एलोकेट कर दी है इस जगह पे, कहाँ गया, अगर आपने पहले से मेमोरी एलोकेट कर दी है तो ये मेमोरी खाता रहेगा, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आप इस मेमोरी को यूज कब करेंगे, लेकिन जब तक आप यूज नहीं करते तो ये मेमोरी खाता रहेगा, मेमोरी में बैठा रहेगा, ठीक है। तो वो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ह्यूज, ओके। उसके अंदर एवरी ऑब्जेक्ट कैन कंटेन लाइक 500 arrays and every array has like 10 values, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, वो इससे मेमोरी एलोकेट नहीं कर देता, वो सिंपली बता देता है कि ओके मैं एक एरे बनाऊंगा और उसमें वो जो एरे है वो कूल स्टूडेंट की टाइप का होगा, ठीक है। तो ये और मैं 10 लोकेशंस लूंगा, तो वो इस तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। तो फिर उसमें मेमोरी एलोकेट करने के लिए यू हैव टू राइट दिस कोड के फॉर एवरी लोकेशन, ठीक है। आप उसको नया कूल स्टूडेंट बनाते हैं तो यहाँ पे उसको मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। इधर मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो दैट इज हाउ द ऑब्जेक्ट्स वर्क, ठीक। तो अभी हमने देखा था ये था कि वी क्रिएट अ कूल स्टूडेंट क्लास बिकॉज ऑल द थिंग्स वर कॉमन इन दिस क्लास एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग दैट, ठीक। इसी तरह in Java we realized that like not we the coders, they realized like okay they are going to use the string class over and over again, and there's no better way of writing a string class apart from having a character array. So why not we create a class around the character array? So that was what they thought, and that's how they worked with this cool string. Okay, so how this works is that since this the cool string should be based on a character array, so we have to define a character array first. So we can write a public character, and we call it text. Let's call it text, and we define it over here. And this text here is going to have some length, so we write public int length. तो क्या होगा कि अब इस क्लास में कूल स्ट्रिंग में वी आर गोइंग टू हैव अ टेक्स्ट एंड वी आर गोइंग टू हैव अ सर्टेन लेंथ। तो अब आपने देखा होगा इसके व्हेन वी आर वर्किंग विद जावा, ठीक है, हम लिखते हैं स्ट्रिंग लेट्स कॉल इट डेटा इज इक्वल, और हम कुछ भी लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पे लेंथ का ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। इट्स एंड इट्स रिटर्निंग एन इंटीजर, ठीक है। इट्स नॉट कॉलिंग calling the variable length, okay। So why is it doing this? Okay, why is it doing this? Do you know why is it not calling the variable length and it's calling the function length? Obviously, so they could have used the variable length over here. No, 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 no. डॉट की वजह नहीं, तो डॉट के बाद अब जिस तरह हमारा यहाँ पे लेंथ है, आई डिफाइन पब्लिक इंट लेंथ, so if I define a cool string, so I can always call the length of this variable length by using cool string, whatever the name of the string is, dot length. But then I will be calling the variable. Over here, it's calling the function dot. So length in int data in string. डेटा इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की क्लास में कोई फंक्शन होगा जो लेंथ है। अरे भाई फंक्शन तो है, सो व्हाई इज इट, वो तो मुझे पता है फंक्शन, तो इन्होंने वेरिएबल को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, दैट इज माय क्वेश्चन, व्हाई आर दे यूजिंग अ फंक्शन।
मैं यहाँ पे पब्लिक इंट, तो यहाँ पे मैंने पब्लिक इंट डिक्लेयर किया था, कूल स्ट्रिंग का मैं वेरिएबल लेंथ का मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ. They are not accessing the variable directly, they're using a length function. So why is that? वो डॉक्यूमेंटेशन चला जाएगा ना. अच्छा भैया बता ही देता हूँ. वो इसलिए कि कोई से ओवरराइट ना कर दे. अगर वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस दिया है पब्लिक का और मैं डॉट करके वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो आई विल बी एबल टू ओवरराइट इट. ओके, अगर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और रिटर्न कर इंटीजर, इट विल ऑल्सो रिटर्न मी द लेंथ. आई विल नॉट हैव एक्सेस टू द लेंथ वेरिएबल. So in order to create something like this, what they did was they might have declared a variable something like this, and they might have made it private. And now once that is done, they created a function, uh, public static int length, and over here they are returned. ठीक है, ये इसलिए हो रहा है ये क्यों एरर दे रहा है. नॉन मेगा स्टैटिक, ओके, सो स्टैटिक नहीं होगा. तो ये अब लेंथ उसकी जो है वो रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो ये इन्होंने डिफाइन किया है. तो इसको ऐसे जो आप अपना भी ये जो क्लास है आपने कूल स्ट्रिंग की बनाएंगे, उसका कोई भी आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप एक फंक्शन कॉल करेंगे ताकि वो जो लेंथ है वो आपको लेंथ रिटर्न करे. ठीक है, अब ये इसलिए करेंगे क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर जो है आपका, whenever you create a constructor, when you define a length, ठीक है, तो जो आपका कंस्ट्रक्टर है that will define a length, and once you have the string you do not want to change the length of the string, क्योंकि अगर आपके एलिमेंट्स जो है कि 4 करेक्टर्स का आपका अगर स्ट्रिंग है और आपने उसकी लेंथ जो है 6 कर दी है, तो इट विल मिसलीड पीपल. ठीक, somebody can change the length, so that is why in order to make that ये किया हुआ है, रखा हुआ है. ठीक है, तो इसलिए अब in order to make the cool string, how the cool string will work, we will write cool string public cool string, and we can pass it an array. So let's call it character, and we call it past. ठीक है, तो जो cool string में जो character है हमने past उसने कर दिया, और हम करेंगे कि हमारा क्या है, text is equal to past, और अब आप करेंगे कि length is equal to past dot length. ठीक, तो इससे क्या होगा कि जब भी कूल स्ट्रिंग है, इफ यू पास अ कैरेक्टर एरे, ठीक है, तो आप जब भी आप बना रहे होंगे, इफ यू राइट समथिंग लाइक कूल स्ट्रिंग data is equal to new cool string, और यहाँ पे आप इसमें कैरेक्टर एरे कोई पास कर देंगे. ठीक है, तो I think it will work with this. I'm not so sure, but more likely it will work with this. ठीक है, तो इस तरह करके अब आप जब डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा कि जो कैरेक्टर एरे है वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा इस तरह. ठीक है, और वो कैरेक्टर एरे जो है जो आप पास करेंगे वो कूल स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट के अंदर सेव हो जाएगा, और साथ ही साथ वो जो उसकी लेंथ है वो असाइन कर देगा. तो उसको हम मेन मेथड से कॉल नहीं कर सकते हैं. नहीं, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कॉल कर. अच्छा, लेंथ वाला क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते. डेटा इसमें डॉट आपका लेंथ ये आया हुआ लेंथ आपका, ये आप कर सकते हैं कॉल, क्यों नहीं कर सकते. आप बिल्कुल कॉल से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये काम करेगा.
ये ख्याल रखिएगा, स्टैटिक मेथड जो है स्टैटिक वेरिएबल्स ही को कॉल करते हैं, और जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो सारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनके ऊपर शेयर हुए हुए, तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम स्टैटिक नहीं बना सकते, क्योंकि हमने इसको स्टैटिक बना दिया तो सारे सारे स्ट्रिंग्स की लेंथ एक ही हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है आपका कंस्ट्रक्टर इस तरह बनेगा, उसके अंदर हम जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू जो है वो आपकी इस टेक्स्ट में सेव हो जाएगी, और जो उसकी लेंथ है वो आपकी यहाँ पे इसके अंदर सेव होगी। ठीक है, तो इस तरह हम अपना कंस्ट्रक्टर, हम पूरा जो अपना कूल स्ट्रिंग है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो जो है पहले से मैं कंस्ट्रक्ट कर चुका हूँ, वो आपका माई स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग किया था। तो ये डेफिनेशन है माई स्ट्रिंग की, कि माई स्ट्रिंग कैसे काम करता है। तो यू लुक इनटू लाइक हाउ दिस विल वर्क। सो दिस इज अगेन माई स्ट्रिंग क्लास, जो कि मैंने कॉल क्लास से बनाई हुई थी, पहले से काम किया था, और आई हैव क्रिएटेड दिस माई स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट सबसे पहले क्या है कि आप देखें कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको मैंने एज प्राइवेट डिक्लेयर किया। प्राइवेट डिक्लेयर करने की वजह से आई विल नॉट एक्सेस देम डायरेक्टली। सिमिलरली लेंथ इज अगेन प्राइवेट, ठीक है, और वो भी इसलिए ताकि मैं लेंथ को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सकूं। और फाइनल, अच्छा फाइनल जो होता है वो होता है कि कोई आप ये चीज कांस्टेंट डिफाइन कर दी, ठीक है। तो इसमें फाइनल आप तब भी यूज करते हैं कि डिफॉल्ट साइज आपने 5 डिफाइन कर दिया है, तो मैं कभी भी डिफॉल्ट साइज जो है मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वंस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड ओवर हियर एज फाइनल, आई कैन नॉट चेंज इट एनीवेयर इन द कोड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा वेरिएबल हो कि जो कि बस एक एक वैल्यू सेव कर ले लेकिन उस वैल्यू चेंज ना हो, तो ऐसे में आप डिफॉल्ट साइज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव द वैल्यू पाई, ये तो यू वांट द वैल्यू पाई टू बी कांस्टेंट, और आप उस वैल्यू पाई को कहीं पे सेव करना चाहते हैं, तो यू डू नॉट वांट एनीबॉडी टू फिडल विद द वैल्यू ऑफ y, तो ऐसे में आप उसको फाइनल डिक्लेयर करेंगे। So once it has been y has been declared as final, nobody can change it. So 3.1415 से कोई 3.1416 नहीं कर सकता। So now I have declared the my string class, and in here we have constant. Final is constant. Yeah, same thing. A cell defaults have a public variable. Will that also works? Default size of a public variable. Yes, it will also work the same. If it's final, it cannot be changed. ठीक है, प्राइवेट इसलिए रखा है ताकि, क्योंकि दिस इज द वेरिएबल व्हिच वी विल बी यूजिंग इनसाइड द फंक्शन, वी विल नॉट बी यूजिंग एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो ये इस क्लास के फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा, तो क्लास को तो इसका एक्सेस होगा। प्राइवेट रखने की वजह यह है कि क्लास तो इसको एक्सेस करेगी, लेकिन एनीबॉडी आउटसाइड द क्लास विल नॉट हैव एक्सेस टू दिस। ओके, so if you write देखिए अब यहाँ पे क्या है, माई स्ट्रिंग, और इसमें लेंथ को सिर्फ माई स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करे तो ये क्या करे, लेंथ को डिफॉल्ट साइज पे सेट कर रहा है। ठीक है, तो यही कि लेंथ को 5 रख रहा है, और करेक्टर से कैरेक्टर एरे डिफाइन कर रहा है जिसमें ये लेंथ को 5 रख रहा है। ठीक है, तो जस्ट इन केस इफ यू जस्ट डिक्लेयर एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट माई स्ट्रिंग, तो उसमें जो एक करेक्टर एरे डिफाइन होगा इसकी लेंथ 5 होगी, तो उसमें 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स आप नहीं डाल सकते। ठीक, अगर आप सिंपल एक सिंगल कैरेक्टर पास करते हैं, ठीक है, तो तब भी सिंस यू आर पासिंग अ सिंगल कैरेक्टर, इस केस में भी इसने क्या किया है कि लेंथ को इसने डिफॉल्ट साइज रखा। ठीक है, और कैरेक्टर्स को इसने न्यू कैरेक्टर डिफाइन करके उसकी लेंथ जो है वो 5 ही कर दी है, लेकिन जो पहली लोकेशन है उसमें उसने कैरेक्टर को रख दिया। So it has created 5 location and an array of length 5, but only in the first location it has put ch. ठीक है, तो ये इस तरह काम कर रहा है। Just in case somebody passes an array, character array, तो ऐसे में क्या कर रहा है कि ये करता है कि लेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टर लेंथ। तो जो जो इसने एरे पास किया है उसकी लेंथ इसने दे दी है, कैरेक्टर इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, इसने न्यू कैरेक्टर डिफाइन किया कैरेक्टर एरे जिसकी लेंथ 5 वही थी जो कि इसने पास की थी, और ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक एक करके कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टर आई में कैरेक्टर सी एच की जो है वैल्यूज कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये कॉपी हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक,
इफ यू रिमेंबर कि जब हम कूल स्ट्रिंग में बात कर रहे थे तो आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो मैंने पास्ट था उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या गलती है? कैन यू टेल मी लाइक व्हाट दिस वाज, व्हाई दिस इज रॉन्ग एंड व्हाई दिस इज राइट? मैं इसको वहां पे कॉपी कर देता हूँ। लेट मी कॉपी दिस हियर फ्रॉम हियर एंड लेट मी पुट इट ओवर हियर। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था कि करेक्टर एरे पास किया था, इसको मैंने करेक्टर एरे को यहाँ पे असाइन किया, लेंथ उसी तरह मैंने असाइन कर दी जैसे इसने असाइन की थी। लेकिन इस केस में इट्स क्रिएटिंग अ न्यू करेक्टर एरे एंड इज कॉपिंग वन एलिमेंट एट अ टाइम, बट दोज वन एलिमेंट एट अ टाइम कैन बी कॉपीड ओवर हियर एज वेल। ठीक है, क्या गलती की है? नहीं नहीं, स्ट्रिंग तो नहीं, नहीं न्यू स्ट्रिंग कहीं नहीं है, ये सारा करेक्टर एरे है ना। ये भी करेक्टर एरे है, यहाँ पे भी करेक्टर एरे है, स्ट्रिंग की तो बात ही नहीं हो रही अभी। एनी गेसेस? अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, पास ही बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं की। देखिए इधर भी मैंने उसी तरह पास किया। आप इसको अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट्स दोनों साइडों पे लिख सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, जावा सपोर्ट्स बोथ ऑफ देम, तो इट्स फाइन। Okay, I guess you guys cannot reach the answer, so I'll just नहीं नहीं, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो ये चूंकि कैरेक्टर एरे है, कैरेक्टर एरे है तो इसमें डॉट लेंथ ही आप करते हैं, इसमें फंक्शन कॉल नहीं होता। ये देखिए, फंक्शन कॉल नहीं होता है, ये वेरिएबल कॉल होता है। ठीक है, तो चूंकि कैरेक्टर एरे है, कैरेक्टर एरे इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन एरे। सिर्फ पास डाल रहे हैं, सो लाइक ओनली वन कैन, नहीं नहीं वो भी सही नहीं है। चलिए, ओके, लेट मी टेल यू लाइक व्हाट द डिफरेंस इज। देखिए, आपके पास एक मेन फंक्शन है, मेन, सो लेट मी टाइप इट आउट। आपके पास मेन फंक्शन है, आपने उसके अंदर एक करेक्टर एरे बनाया, लेट्स कॉल इट ARR। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू और उसको आपने 10 वैल्यू। ठीक है, अब फर्स्ट कैसे मैंने वैल्यूज वगैरह स्टोर कर दी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ माई स्ट्रिंग str is equal to new my string, और उसमें मैं ये ARR पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा करता हूँ। ठीक, आप ये कोड लिखते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये कैरेक्टर एरे बना। How are you passing ch in character both being arrays? मैं इस पर दोबारा आता हूँ। ठीक, मैं क्या माई स्ट्रिंग हुआ, ठीक है, ये किया, तो अब से हो ये रहा है कि ये जो हमने कैरेक्टर बनाया था ना, कैरेक्टर, इसका रेफरेंस इधर पास हो रहा है। ठीक है, जब ये कैरेक्टर का रेफरेंस पास हो रहा है, इसका मतलब है कि दिस एरे एंड दिस एरे आर गोइंग टू बी द सेम एरेज, विच मीन्स कि जो मैं मेन से फंक्शन पास करूंगा, तो ये जो एरे पास्ड है, टेक्स्ट, ये एरे टेक्स्ट है, इट विल point towards the same array where the past is passing। ठीक है, तो ये दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे होंगे। तो अगर मैं इस एरे में चेंजेस करूं या इस एरे में चेंजेस करूं, बोथ ऑफ देम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम एरे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि
ये जो एरे है, मैं एक्सपेक्ट क्या करूँ कि एसटीआर के अंदर जो करेक्टर एरे है, इट शुड बी अ सेपरेट कैरेक्टर, बट इट विल नॉट बी सेपरेट कैरेक्टर, इट विल बी दिस कैरेक्टर। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर एरे में चेंजेस करूंगा तो ये कैरेक्टर एरे है ये चेंज हो जाएगा। ठीक, तो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर एरे जब मैं डिफाइन करूँ तो उसमें वो वैल्यूज तो वही डाले जो कि इस कैरेक्टर एरे में है, लेकिन जब मैं उसमें चेंजेस करूँ तो ये कैरेक्टर एरे जो है ये अफेक्ट ना। ठीक है, तो इस वजह से ये जो तरीका है, ये वाला, ये काम नहीं करेगा, ये काम तो करेगा लेकिन इट विल गिव अस द रॉन्ग रिजल्ट। क्योंकि दिस टेक्स्ट इज गोइंग टू पास टुवर्ड्स, इज गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स द सेम कैरेक्टर दैट वाज पास्ड। ठीक है, तो इसलिए ये चीज काम नहीं करेगी। हमें करना क्या है कि हमने इस कैरेक्टर की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन किया था इसको हम वही लेंथ देंगे जो कि हमारे पास का पास्ट कैरेक्टर एरे की लेंथ आई थी। ठीक है, जब वो लेंथ हमने दे दी तो हम एक एक करके उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम इस कैरेक्टर एरे के अंदर कॉपी करेंगे। तो अब ये एक उस पास्ट कैरेक्टर एरे की कंप्लीट कॉपी बनाएंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग। आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल। Sir, how are we passing ch in character? Both being arrays. आप कैरेक्टर तो पास कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर यहाँ पे पास किया और जो जीरो लोकेशन है उसके अंदर मैंने सी एच को डाल दिया। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा कैरेक्टर एरे पास किया है, और जब पूरा कैरेक्टर एरे पास कर दिया तो उसकी लेंथ ले ली मैंने और इसकी लेंथ वही डिफाइन कर दी, जो ये लेंथ वही डिफाइन कर दी जो कि इस कैरेक्टर एरे की लेंथ थी। उसके बाद मैंने एक नया कैरेक्टर एरे बनाया और उसकी वही लेंथ रखी जो गई है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई वैल्यूज नहीं है। फिर मैंने फॉर लूप लगा के उसके अंदर सी एच की सारी वैल्यूज जो है वो कॉपी की है। ठीक है, तो इस तरह ये माई स्ट्रिंग ने काम किया। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये जो लिखा है हमजा नहीं कुंदन हमजा ने लिखा है कि सर एरे में सिर्फ पास डाल रहे हैं। भाई यहाँ पे पास डाल रहे हैं, व्हेन आई राइट दिस, यहाँ पे अगर मैं करेक्ट एरे पास करता हूँ, ठीक है, तो व्हेन आई राइट ओनली द नेम, तो जब भी मैं नेम लिखूंगा ना इट विल एक्चुअली लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट करेक्टर सी एच आर temp is equal to new CHR, new character CHAR 20, और यहाँ पे कूल स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं टेम्प लिखता हूँ। जब मैं टेम्प लिखता हूँ आई एम नॉट राइटिंग टेम्प 0, आई एम नॉट राइटिंग टेम्प 1, आई एम नॉट राइटिंग टेम्प 2, आई एम जस्ट राइटिंग टेम्प। जब मैं टेम्प लिख रहा हूँ तो आई एम एक्चुअली पासिंग द रेफरेंस ऑफ दैट एरे ओवर हियर, आई एम नॉट पासिंग द वैल्यूज। तो मुझे बस रेफरेंस पास करना, तो रेफरेंस के वजह से मैं सारी कैरेक्टर की वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। वी कवर्ड दिस प्रीवियसली। यहाँ पे आप रेफरेंस पास करें, आप एक वैल्यू पास नहीं करेंगे। मुझे एक वैल्यू पास करनी होती है, आई वुड हैव गिवन इट लाइक व्हाट वैल्यू, 0 वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, वो मुझे लिखना होता। ठीक है ना, तो वो मुझे लिखना होता, लेकिन चूंकि मुझे मुझे एक वैल्यू पास नहीं करनी, मुझे यहाँ पे सिंपली पूरा जो कैरेक्टर का रेफरेंस पास करना, तो इस वजह से आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द एरे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो अगर हम करेक्टर दिस इज इक्वल सी एच करके करेंगे तो फिर अगर करेक्टर एरे में चेंजिंग से सी एच भी चेंजिंग होगी, अपने यही बताया है, राइट। अगर यही चीज आप अंग्रेजी में लिख देते तो ज्यादा आसानी थी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। एक तो रोमन उर्दू इतनी माशाल्लाह है कि अगर हम कर मेरे ख्याल में आई शुड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। ठीक है, सो let's try to solve this way. So okay, let's
I'll create a public change and public change. So let me make a character पास्ट, ये एक हिस्सा कर दो। ठीक है, तो ये एक चेंज है जिसमें करेक्टर पास पास हो रहा है और मैं करता हूं कि कैरेक्टर temp is equal to past past और मैं करता हूँ temp 0 is equal to set। ठीक है, character temp is equal to character, let's make it 3 और मैं करता हूँ उसी पे हम आ रहे हैं, वही तभी मैं इसको आसान कर रहा हूँ, उसी पे हम आ रहे हैं, डोंट वरी। टेम्प मैं 0 में मैं वैल्यू डाल देता हूँ ए और या बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं ए बी ठीक है, ये नहीं टेम्प करके टेम्प इज इक्वल टू यूं कर देते। ठीक है, हमने कैरेक्टर टेम्प बनाया, उसका उसमें हमने 3 वैल्यूज डाल दी ए बी और सी। तो ये चूंकि कैरेक्टर एरे है तो इसमें 3 वैल्यूज में कैरेक्टर की हमने डाल दी। अब हम इसका जो फंक्शन है चेंज कॉल करते हैं, चेंज, और उसमें हम टेम्प को पास कर दें। एरर क्यों दे रही है? मेगा स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक उसमें भी पास कर रहे हैं। ठीक, और चेंज में क्या कर रहा है कि टेम्प 0 को ये डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं कि for int I is equal to 0, I is less than temp dot length, इसमें हम कर देते हैं system dot out dot println, इसमें हम कर देते हैं temp। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कोड को देखते हैं, ये कोड कर क्या रहा है। कोड ये कर रहा है कि हमने सबसे पहले एक कैरेक्टर डिफाइन किया, उसमें हमने 3 वैल्यूज दी ए बी सी। ठीक है, तो इस कैरेक्टर के अंदर ए बी सी वैल्यूज है। फिर हमने चेंज का फंक्शन कॉल किया, चेंज के फंक्शन हमने ये टेम्प का हमने वेरिएबल पास कर दिया। यहाँ पे हमने रेफरेंस पास किया, वी हैवंट पास टेम्प 0, सॉरी वी हैवंट पास्ड टेम्प 0, we haven't passed temp 1, we haven't passed temp 2, we have passed temp। आप सिर्फ जब नाम लिखते हैं एरे का तो यू आर एक्चुअली पासिंग द एंटायर एरे ओवर है। ठीक है, यू आर नॉट पासिंग द इंडिविजुअल लोकेशंस। क्योंकि हम पूरा यहाँ पे एरे पास कर रहे हैं और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ कि एरे एक्सेप्ट करता है ये पूरा पूरा, तो दिस इज अ वैलिड कोड, ऐसे हमें कोई एरर नहीं दे रहा। हमारे पास ये पूरा एरे आया तो हम एक और एरे से कहते हैं कि यू के इट विल गेट द वैल्यू। ठीक है, इट विल गेट द वैल्यू ऑफ पास। क्योंकि ये पूरे एरे की वैल्यू यहाँ पे पास हुई है तो पूरे का पूरा एरे जो है वो इस टेम्प के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टेम्प, और इसका नाम टेम्प क्यों रखा हुआ, हम चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल कर देते हैं, ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल पास कर। ठीक, तो इसको भी मैं नाम ओरिजिनल रख देता हूँ, ओरिजिनल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमने जब ओरिजिनल एरे पास किया,
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल एरे आया, बल्कि उसका रेफरेंस आया एक्चुअली। ठीक, तो यहाँ पे कैरेक्टर टेम्प इज इक्वल टू ओरिजिनल, ओरिजिनल। तो यहाँ पे जो आगे पास ओरिजिनल आया, तो यहाँ पे आपके पास रेफरेंस आ रहा है, यू गेटिंग द एंटायर एरे एज अ रेफरेंस। ठीक, और वो जो रेफरेंस है हमने एलोकेट कर दिया। जब हमने रेफरेंस एलोकेट कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल और ये टेम्प आर द सेम एरे। तो जब मैं इस टेम्प में चेंज करूंगा तो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली मैं इसका आउटपुट करूंगा तो मुझे जी बी सी मुझे पास आना चाहिए। इफ आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। temp cannot be resolved to a variable, कहाँ पे भाई? character temp is equal to original, 14 में कह रहा है, हाँ temp लिखा हुआ original, original। तो if we run this, ठीक है, देखिए ZBC आया। ठीक, जबकि मैंने मेन के अंदर इस एरे को नहीं छेड़ा है, मैंने इसको इस चेंज के फंक्शन के अंदर छेड़ा है। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने इस सॉरी ओरिजिनल का मैंने रेफरेंस पास किया। ठीक है, तो जब आप रेफरेंस पास करते हैं यहाँ पे, तो ये जो एरे बना है, इट टेक्स द रेफरेंस ऑफ द सेम एरे। ठीक है, तो ये टेम्प और ये ओरिजिनल दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम सेम करेक्टर एरे। तो इसलिए वजह से मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो ये ओरिजिनल में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक, ये मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता क्या हूँ कि मैं इस ओरिजिनल की कॉपी बनाऊं, ताकि जब मैं ये काम करूं तो ये जो ओरिजिनल है ये चेंज ना हो। ठीक, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो रेफरेंस आ रहा है ओरिजिनल का, मुझे इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। तो कॉपी कैसे बनेगी कि मैं करूंगा कि कैरेक्टर टेम्प इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, मैं एक एरे डिफाइन करूंगा which will have the same length as original dot length। ठीक है, इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूं यहाँ पे int length is equal to original dot length। तो ओरिजिनल की जो लेंथ है उसकी लेंथ डिफाइन कर दी। मैं एक डिफाइन करूं एरे temp is equal to न्यू कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पे एक एरे बना दिया which has the same length as the original dot length, और फिर यहाँ पे for लूप लगाऊं, ये मैंने नीचे किया हुआ है। for I is equal to original dot length, इसको मैं लेंथ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि temp I is equal to original I। ठीक है, तो अब मैंने एक temp सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर किया एरे, उसकी वही लेंथ थी जो कि ओरिजिनल की लेंथ थी, और फिर उसमें मैंने वही वैल्यूज डालना शुरू कर दी जो कि ओरिजिनल के अंदर वैल्यूज डालना शुरू की। उसके बाद मैंने उसकी जो जीरो लोकेशन है उसमें मैंने z डाल दिया। अब जो z जो डाला है वो इस टेम्प इस लोकल वेरिएबल के एरे के अंदर डाला है, वो मैंने ओरिजिनल के अंदर नहीं डाला। इस वजह से अब जब मैं चेंज ओरिजिनल कॉल करता हूँ और उसके बाद मैं ये ओरिजिनल कॉल करूँ तो मेरे पास अब ABC ही लिखा आएगा इंस्टेड ऑफ ZBC। ठीक है, इसका मैं रन करूँ, ठीक है, ABC आया इंस्टेड ऑफ ZBC। वो इसलिए आया क्योंकि इस फंक्शन के अंदर I created another array which had the same length as the original's length, और फिर मैंने ओरिजिनल की सारी जो वैल्यूज हैं एक एक करके कॉपी करी। जब मैंने कर दिया था कि कैरेक्टर टेम्प इज इक्वल टू ओरिजिनल, तो उसमें मैंने उसका एक और रेफरेंस बना दिया था। तो बेसिकली द सेम array was being used in both the functions। अब ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो असल में ये जो हो रहा है, ये जो पूरी प्रोसेसिंग है, पूरी प्रोसेसिंग वो मैं आपको बताता हूँ पूरी प्रोसेसिंग कैसे है। Sir, but all the values of original array had been passed to temp array and we were making changes in temp array, then why was original array affected? मैं आपको बताता हूँ, पूरा प्रोसेसिंग बताता हूँ आपको, ठीक है, तो उससे आपको शायद ये क्लियर हो जाए।
don't save. मैं तो बनाता हूँ। थ्री वैल्यूज का मैं बताता हूँ, ठीक है ये ठीक है। और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा, आपकी चैट में जरा गायब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको भाई अपनी वीडियोस वगैरह आप ऑफ कर दें। स्टॉप वीडियो। ओके participants, अपनी वीडियोस प्लीज ऑफ रखिएगा। अच्छा ओके, so we have this here and let's minimize this and close this, make it this way, let's make it this way. Okay, now इस पे आते हैं, ठीक है। ओके सो सबसे पहले हम कहते हैं कैरेक्टर ओरिजिनल हमने डिफाइन किया। ओके तो हमने ओरिजिनल डिफाइन किया, ओरिजिनल ये डिफाइन कर दिया हमने, ये एक कैरेक्टर एरे है, ठीक। अब उसमें कहा कि ए बी और सी वैल्यू डाली, जब ए बी और सी वैल्यू डाली तो इधर आपके पास ए आ गया, इधर आपके पास बी आ गया और इधर आपके पास सी आ गया, ठीक। अब ये करने के बाद हमने कहा चेंज, और उसमें हमने इसका रेफरेंस पास कर दिया, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि आपका ये मेन फंक्शन है, मेन, उसके अंदर आपके पास ओरिजिनल एरे है। तो जब आपने लिखा ओरिजिनल इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी, आपने ये लिखा तो क्या हुआ कि ये जो ओरिजिनल था आपका, इट स्टार्टेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस लोकेशन, ठीक है। अब वहां पे उसने ए बी सी लिख दिया, सही। तो ए जो है वो जीरो लोकेशन पे है, बी जो है वन लोकेशन पे है ओरिजिनल की, और सी जो है वो टू लोकेशन। लेकिन ये जो पूरा पूरा एरे है ये मेमोरी में कहीं पे रिजाइड करता है। जब ये मेमोरी में रिजाइड करता है तो मेमोरी की अपना एक होता है एड्रेस वैल्यू होती है, तो दैट एड्रेस वैल्यू कैन बी, लेट्स मेक इट 0x1, दैट इज द एड्रेस वैल्यू। तो ओरिजिनल जो है वो 0x1 लोकेशन में पड़ा हुआ है और वहां पे ए बी और सी वैल्यूज, ये तो हो गया आपका ओरिजिनल। फिर जब आपने एक बनाया फंक्शन चेंज का, और उसमें आपने लिखा कि करेक्टर, इसका भी मेरा नाम ओरिजिनल दे दिया, ठीक। तो जब आपने ये काम किया, अब उसके अंदर मैं वो लिख देता हूँ करेक्टर, करेक्टर टेम्प इज इक्वल, जब आपने ये काम किया ओरिजिनल, तो क्या हुआ कि ये चेंज, जो मैं आपको बताया पैरामीटर्स जो आप लिखते हैं, दीज आर द लोकल वेरिएबल्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। So you have actually created another variable, which is a local variable of change, and its name is also original, and it is also pointing towards the same location. ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल है ये इस चेंज का लोकल वेरिएबल है, ये जो ओरिजिनल है ये इस मेन का लोकल वेरिएबल है। ये ओरिजिनल एक वेरिएबल नहीं है, सेपरेट वेरिएबल्स है। लेकिन जब आप लिखते हैं ओरिजिनल और ये लिखने के बाद आप लिखते हैं चेंज, और इसमें आप ओरिजिनल पास कर देते हैं, तो ये जो ओरिजिनल है ये अभी आपको, ये 0x1 है, ये इधर पास हो रहा है 0x1, इट्स नॉट पासिंग ए बी और सी, इट्स पासिंग दिस रेफरेंस 0x1। तो जो 0x1 है यही रेफरेंस इस चेंज के लोकल ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर आ जाता है। तो ये भी इसके अंदर जो ओरिजिनल की वैल्यू है वो आपकी 0x1 ही होती है।
ठीक है। फिर हम लिखते हैं करेक्टर टेम्प, और हम लिख देते हैं कि टेम्प ओरिजिनल, ऐसा करेक्टर टेम्प इज इक्वल टू ओरिजिनल। तो इसका मतलब है कि इट हैज क्रिएटेड अ थर्ड वेरिएबल, देखिए इसका लोकल सेकंड वेरिएबल है, वैसे ऑल ओवर इसके थर्ड वेरिएबल। तो वी आर मेकिंग अनदर वेरिएबल, और उसके अंदर भी हम वही रेफरेंस वैल्यू डाल रहे हैं जो कि इस ओरिजिनल के अंदर आ रही है। तो 0x1 चूंकि हमने इसको दे दिया, तो टेम्प भी इधर ही पॉइंट करेगा और इसकी वैल्यू होगी 0x1। जब ये ओरिजिन इधर पॉइंट कर रहा है, ये ओरिजिन इधर पॉइंट कर रहा है, और ये टाइम इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों जो एरेज हैं, वेरिएबल्स हैं, तीनों के तीनों एक ही एरे की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक, इस वजह से जब मैं टेम्प के अंदर कोई चेंज करूंगा तो इसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे, और वही मैंने आपको करके दिखाया था, इसके मैं चेंज की थी, उसके अंदर चेंज हो गई थी। ठीक, तो मैं चाहता क्यों, मैं चाहता ये हूँ कि जो मेरे पास वैल्यू आए इधर, ठीक है, उसको मैं यूज करके उन वैल्यूज को तो एक्सेस करूं, लेकिन उन वैल्यूज को डायरेक्टली मैं स्टेम के अंदर स्टोर ना करूं। ठीक, ये मैं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं इस कोड को इस तरह नहीं लिखूंगा, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग द कोड, आई शुडंट राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि इसको तो डिलीट कर देना। तो जब मैं इसको डिलीट कर दिया तो इट्स नो लॉन्गर पॉइंटिंग हेयर, और इसकी जो वैल्यू है वो 0x1 नहीं है। ठीक है, तो आई लेट मी डिलीट दिस। बाकी वैसे ही है अभी, सो फार दिस ओरिजिनल रेफरेंस गोज इनटू दिस ओरिजिनल, इसमें अभी कुछ नहीं हो रहा। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि करेक्टर लेट्स कॉल इट टेम्प इज इक्वल टू न्यू करेक्टर। अब मैं एक नई मेमोरी लोकेशन डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं वही लेंथ दे रहा हूँ जो कि ओरिजिनल डॉट लेंथ, जो कि ओरिजिनल की लेंथ है, मैं वही वैल्यू इसको असाइन कर रहा हूँ। यानी कि इसकी सिर्फ मैं लेंथ बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक और एरे में डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इट हैज द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये किया, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी मेमोरी लोकेशन है, यू हैव यू हैव मैनी मोर मेमोरी लोकेशंस। कहाँ गया shapes, you have many more memory locations, तो जब मैं ये करता हूँ तो इट क्रिएट्स अ न्यू एरे इन सम अदर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, उसका रेफरेंस जो है 0x2 कर देते हैं। तो ये बताता है कि आई हैव क्रिएटेड अ न्यू एरे, इट इज गोइंग टू हैव द सेम लेंथ एज दिस एज द ओरिजिनल, बट इट इज अ न्यू एरे। ठीक है, अब ये, अब मुझे क्या करना है, चूंकि ये कॉर मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है, मैंने इधर वही वैल्यूज डालनी है जो कि ए बी और सी वाली है, जो कि इस ओरिजिनल की वैल्यू, मैं वही वैल्यूज में डालना चाहता हूँ। वो वैल्यूज डालने के लिए ये देखें, ये कोड लिखा हुआ है। ठीक, कि नहीं, ये तो गलत कोड है, हाँ, ये जो कोड लिखा, ये। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि टेम्प के अंदर मैं वही वैल्यूज डालूं जो कि ओरिजिनल की वैल्यूज हैं, तो एक एक करके वैल्यूज डालना शुरू कर देता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ए और बी, सी और सी आ जाता है। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे सी आ जाएगा। तो अब मैं जब टेम्प 0 में चेंजेस करूंगा तो ये इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टेम्प 0 जो है वो इधर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे आपके पास, एक ही जगह आपके पास जेड आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आगे पास जेड आ जाएगा। ठीक? तो इस वजह से जो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ वो इधर तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका टेरेस जो है इस तरह काम कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये आपने कब लिखा था ये मुझे नहीं पता, कर से फिर से। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों एरेज में फर्क है। तो हमने जब उसमें माई स्ट्रिंग में हमने बात की थी, माई स्ट्रिंग पे आया था,
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आगे पास करेक्टर एरे पास होता है, लेकिन उस करेक्टर एरे को हम नहीं एज इट इज असाइन करते हैं, हम पहले उसकी लेंथ लेते हैं और फिर एक एक करके उसकी सारी वैल्यूज कॉपी करते हैं। इस वजह से इंडिविजुअल जो माई स्ट्रिंग आप बनाएंगे, उसका जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें आप जो एरे पास करेंगे तो वो एरे इज गोइंग टू बी सेपरेट एरे, और इसके अंदर जो एरे स्टोर करेंगे इट्स गोइंग टू बी अ सेपरेट एरे। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों आपस में फर्क होंगे। तो उसके बाद बस फिर सिंपली इन्होंने ये भी किया हुआ है कि अगर आपने माई स्ट्रिंग है उसके अंदर आपने दूसरा माई स्ट्रिंग पास कर दिया तो वो उसको भी उसी तरह ही एलोकेट करते हैं वैल्यूज को। ठीक, इक्वल्स में ये जो इक्वल्स का फंक्शन है, ये कि आपने इसके अंदर एक और माई स्ट्रिंग पास की और आप चेक करना चाहते हैं कि एक माई स्ट्रिंग दूसरे माई स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप चेक लगाते हैं कि उसकी लेंथ बराबर है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर लेंथ ही बराबर नहीं है दोनों स्ट्रिंग्स की तो बाकी तो कुछ चेक करने की जरूरत ही, द स्ट्रिंग्स विल नॉट बी इक्वल, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर जैसे केस लेंथ बराबर है तो ये क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि इफ दिस करेक्टर आई इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट करेक्टर आई। ठीक है, तो यानी कि ये सबको चेक करे एक एक करके, वाइल लूप लगा हुआ है ना, एक एक करके चेक कर रहा है कि जो करेक्टर्स हैं वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। पहले लेंथ चेक करे, अगर लेंथ बराबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करता है, उसके बाद इंडिविजुअल करेक्टर को चेक करे, अगर वो बराबर नहीं है तो तब भी रिटर्न फॉल्स करे। और इफ बोथ ऑफ देम ये अगर इधर से पास करे इधर से पास करे तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। ठीक है, इक्वल्स है। सर करेक्टर टाइम इज इक्वल टू ओरिजिनल टू करेक्टर एरे यूज करें तो क्या होगा? देखिए वो, देखिए ओरिजिनल टू करेक्टर एरे ये स्ट्रिंग का होता है, मैंने करेक्टर एरे पास किया था, मैंने स्ट्रिंग पास नहीं किया था। आई पास करेक्टर एरे, तो उसमें टू करेक्टर एरे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। टू करेक्टर एरे जो है वो स्ट्रिंग का फंक्शन है। अगर आप ओरिजिनल इज इक्वल टू टू करेक्टर एरे करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, एक नया करेक्टर एरे बना के भेजेगा और स्ट्रिंग उससे फिर चेंज नहीं होगा, इट रिटर्न्स अ न्यू करेक्टर एरे, तो उसमें नया करेक्टर एरे आ जाएगा। अलग से मेमोरी लोकेट होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग करता है। सर इस जब से होगा व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट लाइक स्ट्रिंग टू सर, जी इसमें यूज होगा। ठीक है सर, इफ के साथ एल्स इंटरनल करना जरूरी नहीं होता। नहीं, इफ के साथ एल्स जरूरी नहीं होता। रिटर्न टू, ओके। और ये सिंपल है कि करेक्टर ऐड, कि अगर माई स्ट्रिंग को आप, जैसा आपको था स्ट्रिंग के अंदर भी करेक्टर ऐड था ना, तो वो के ये करेक्टर कौन से इंडेक्स में मौजूद है। ठीक है, तो ये वो कर रहा है, तो इस इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर मौजूद है। तो आप लिखते हैं कि माई स्ट्रिंग डॉट माई करेक्टर एट, वहाँ पे इंडेक्स पास कर देते, तो इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग होता है वो उसको रिटर्न कर देता है। तो फर्स्ट कहीं आपने थ्री पास किया था। अब अगर थ्री जो है वो जो उसकी लेंथ है उससे ज़्यादा है, तो फिर कह देगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अगर वो उसके अंदर है तो क्या करेगा, सिंपली उस जो करेक्टर एरे है उसका जो इंडेक्स है वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरह आगे पास वो करेक्टर आगे पास रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह करके इसके अंदर हम बाकी फंक्शन बनाए हुए। टाइम वी हैव ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दोस, यू कैन गो थ्रू दोस। ये सारे फंक्शन इसके अंदर बने हुए हैं, दे आर मोर और लेस द सेम फंक्शंस जो कि आपके स्ट्रिंग की क्लास के अंदर है, और वो उनमें से कुछ फंक्शंस जो है यहाँ पे सही माई सब स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया हुआ है और ये सारे उसके अंदर एक्सेप्शंस चेक करते हैं, उसके बाद जो सब स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पे निकाल के देता है। ठीक, तो किस तरह वो फंक्शंस बने हुए स्ट्रिंग का जो क्लास है वो किस तरह बनी हुई है, तो यू कैन गेट अ गुड आइडिया कि हाउ यू कैन मेक योर ओन क्लास। ठीक है, अब व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन क्लास यू कैन डिफाइन योर ओन फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट करेंगे कोई कहता है कि अगर अगर मैं -1 पास कर दूं इंडेक्स में, तो फिर वो -1 को ना कन्वर्ट करके आप जीरो वैल्यू दे दें। ठीक, इफ यू गेट, अभी तो यहाँ पे है ना कि मैंने इंडेक्स एट दिया हुआ है, यहाँ पे अभी दिखाया था आपको।
इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ यहाँ पे इससे पहले करेक्ट ऐड दिया मैंने। तो फर्स्ट करें कि यहाँ पे लिखा ना कि इफ इंडेक्स इज लेस देन 0, ये दिया हुआ है। ठीक, इससे पहले मैं लिख देता हूँ कि if index is equal to -1। ठीक है, तो अगर कोई -1 दे दे तो मैं क्या करूं, मैं इसको चेंज कर दूं इंडेक्स इज। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि एक स्पेशल केस है कि अगर कोई -1 दे देता है तो वो इट शुड रिटर्न इंडेक्स इक्वल टू 0। इंडेक्स को 0 कर दे और फिर तो आगे पास जो 0 करेक्टर है वो आगे पास रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो तो इसमें क्या होता है कि कोई अगर गलत वैल्यू दे दे तो वो हमेशा 0 लोकेशन वो उसकी रिटर्न कर देगा। ठीक, अगर आप लेकिन इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, डू इट सो दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि -1 -1 वैल्यू देने से आगे पास 0 लोकेशन ही आगे पास रिटर्न होगी। ठीक, तो जब आप ना स्ट्रिंग क्लास बना रहे होते हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी मर्जी से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोड लिख सकते हैं, अपनी मर्जी चेंज कर सकते हैं, वरना आगे पास जो स्ट्रिंग क्लास है उसको आपको एज इट इज यूज करना पड़ेगा। ये तो जो स्ट्रिंग क्लास के क्रिएटर्स हैं उन्होंने सोचा कि हमें कौन कौन सी क्लासेस की हमें जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने वो सारे सारे फंक्शन है ना स्ट्रिंग क्लास के अंदर डाल दिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और भी फंक्शन होना चाहिए था उसके अंदर, तो फिर फर्स्ट है कि आप कहते हैं कि जहाँ पे ABCD आ रहे हैं वहाँ पे मुझे रोमन करें, वो उर्दू करेक्टर्स आना शुरू है, अलिफ बे पे आना शुरू है। तो ऐसे फिर आपने उस क्लास के ऊपर अपनी क्लास डिफाइन करके उसके अंदर चेंजेस कर दी। so दिस इज हाउ द क्लासेस वर्क। ये मोर और लेस तो वैसे अरेज का हो गया कोड, लेकिन आप फिर भी इसको देख सकते हैं। तो अच्छा, अब 10 बजे आपका फिर से क्विज है, तो बी रेडी, टेक द क्विज and the quiz will be of 35 minutes, तो तब तक आप उसे कर सकते हैं। I will recommend that you finish it within 30 minutes। अपने टाइमर लगाइएगा और best of luck with the quiz। So I'll end this lecture here। मैसेज करके अच्छा, अभी शेयर की हुई स्क्रीन स्टॉप कर देते हैं।